Hello students. In previous lecture we discussed about definition of memorandum of association. Then we discussed about characteristics of memorandum of association. Our second question, importance of memorandum of association. Today we are going to learn about clauses of the memorandum of association. And student, this clauses of memorandum of association is the most important for your examination in SPCC as well as in OCA. तो ये दोनों में बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए और ये जानना ज़रूरी है आपको. So mainly there are 6 clauses of memorandum of association. One is a name clause, registered office clause, object clause, liabilities clause, capital clause, subscription clause. So first, that is name clause. Name clause of the memorandum is necessary to state the name of the proposed company. Being artificial legal person, company must have its name. It is a privilege for the promoters of the company to select the name of the company as they desire. However, this discretion to have desired name of the company is subject to the following restrictions. So, in memorandum of association is a fundamental document which shows the objective name of the company, and it is very useful for the shareholders, creditors, bankers as well as public. So in memorandum of association, first clause, that is name clause, because company is an artificial legal person, so every company must have its a name. जैसा आपका नेम है उससे आपकी सोसाइटी में आपकी आइडेंटिटी है, ऐसे कंपनी के जो नेम है उससे कंपनी की मार्केट में आइडेंटिटी बनेगी. जैसे रिलायंस है, अमेजोन है, फेसबुक है, एलजी, सैमसंग, ये सब नेम है. तो वो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करने का सोचा है, वो कंपनी का नेम सिलेक्ट करेंगे. तो कंपनी का अगर आपको नेम सिलेक्ट करना है, सो सम ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इज गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013. तो क्या रिस्ट्रिक्शन है आप देख सकते हो. नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएट, मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी should not be identical with or resemble the same an existing registered company. So first thing, whenever the name is decided by the promoters, so your name should not be identical with any existing registered company. Means in at present Reliance Industries is existing company, Asian Tiles, Asian Paints, Maruti, Hyundai, Honda, LG, Samsung, these are the existing company in the market. So you cannot give your company's name as a Reliance or a Tata or LG company or a Samsung company, because your name, any new company cannot copy other company name. अगर आपकी कंपनी का नेम आपको डिसाइड करना है तो जो भी इंडिया के अंदर अभी एग्जिस्टिंग कंपनी है, रिलायंस, टाटा, बिरला के, एलजी, सैमसंग, उसका नाम नहीं रख सकती. उसके अलावा कोई भी नेम रख सकती है. कोई भी कंपनी के आप कॉपी करोगे तो कॉपीराइट एक्ट है वो वायोलेट होगा.
तो सामने की कंपनी आप पर कोर्ट में केस कर देगी, तो आपको उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो कंपनी का नाम न्यू होना चाहिए, ऐसी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका नाम आप नहीं रख सकते। द नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल और ऑब्जेक्शनेबल। इट शुड नॉट constitute any offense under any law। सेकंड थिंग, आपका जो कंपनी का जो नेम है शुड नॉट बी अनडिजायरेबल और एनी ऑब्जेक्शनेबल। आपका अगर नाम रखना ही है कंपनी का, तो कोई भी आपका एक्ट वायोलेट ना हो ऐसे आपको नाम रखना है। जैसे कोई टेररिस्ट है, उसके नाम पर अगर आप कंपनी स्टार्ट करोगे तो वो ये प्रॉपर नहीं है। जैसे दाऊद इब्राहिम टेररिस्ट था, तो भाई दाऊद इब्राहिम के नाम से कोई कंपनी बना दी कि भाई मुंबई टेररिस्ट कंपनी या जम्मू कश्मीर टेररिस्ट कंपनी, तो ऐसा आप नाम नहीं रख सकते। कोई भी अनडिजायरेबल और अगर कॉन्स्टिट्यूट को वायलेट करे तो ऐसा आप नाम नहीं डिसाइड कर सकते। आपका नाम एकदम इतना प्रॉपर होना चाहिए जिससे मार्केट के अंदर आपकी एक अलग से प्रेस्टीज क्रिएट हो जाए। जैसे अमेजोन है, तो कितनी बड़ी ब्रांड नेम है उसका। नो वर्ड और एक्सप्रेशन in the name of company should be such that it carries impression that the company is connected with central state government or local authority or body corporate constituted by central state government, for example president, rashtrapita father of nation, prime minister, chief minister, court, governor. So whenever company's name आपको डिसाइड करना है, इट इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी गवर्नमेंट। जिससे आपको कंपनी स्टार्ट करना है तो ऐसे आप नहीं रख सकते गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कंपनी या गुजरात एसोसिएटेड कंपनी या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी, आप नहीं रख सकते। जैसे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते महात्मा गांधी इंटरनेशनल कंपनी, ऐसा नाम नहीं रख सकते। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज कंपनी, ऐसा नाम नहीं रख सकते। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है तो अब नरेंद्र मोदी कंपनी नहीं रख सकते। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, वे चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कंपनी, ऐसा नाम नहीं रख सकते। गुजरात गवर्नर के नाम से भी आप कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। सो नो वर्ड और एक्सप्रेशन इन द नेम ऑफ कंपनी should be such that it carries impression that the company, ऐसा कोई भी नाम नहीं होना चाहिए जिससे आप किसी को ये लगे कि ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है या स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड है या कोई लोकल अथॉरिटीज जैसे हिम्मतनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है कि भाई हिम्मतनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसा नाम नहीं रख सकते। फोर्थ थिंग, every public company with limited liabilities must add the word limited, and a private company must have private limited at the end of its name. So it is rules for Companies Act. If your company is limited, limited means any company issued a share in the market, so it is a limited company, like Reliance Industries Limited, Tata Steel Limited. So it clearly shows that this is a public limited, उसने मार्केट में शेयर इश्यू किए हैं तो एंड ऑफ द इट्स नेम उसको लिमिटेड लिखना पड़ेगा। एंड इफ एनी कंपनी डज नॉट इनवाइट टू शेयर होल्डर फॉर अ परचेज ऑफ शेयर, अगर किसी कंपनी ने शेयर इश्यू नहीं किए हैं, पब्लिक को इनवाइट नहीं किया है, सो उसको एंड ऑफ द नेम उसको लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, सिटी टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड।
लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड, माइलस्टोन प्राइवेट लिमिटेड, स्टार सिटी प्राइवेट लिमिटेड, तो उससे मालूम हो जाएगा कि ये कंपनी ने मार्केट के अंदर शेयर इश्यू नहीं किए हैं। तो आपकी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। Companies proposed to be established for the purpose of promotion of commerce, art, science, sports, research, social welfare, religion, charity, having no motive to distribute the profit in the form of dividend, are exempted from adding the word limited or private limited. If your company is the main purpose to promotion of art and science और रिसर्च और चैरिटी, कई लोग ऐसी कंपनी बनाते हैं जिसका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सिर्फ सोशल वेलफेयर होता है, सर्विस प्रोवाइड करना है, जिसको आप एनजीओ बोलते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की ऐसे बहुत सारी कंपनी है, उसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस वो देते हैं, कोई गरीब बच्चे उनको हेल्प कर देते हैं, कहीं पर सोशल वेलफेयर करते हैं, चैरिटी करते हैं। तो अगर उनका मेन पर्पस प्रॉफिट का नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड भी देना नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंपनी अगर उसके नाम के एंड के अंदर लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। सो दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर एग्जम्प्टेड फॉर एडिंग the word limited or private limited, but their main purpose behind service, religion, charity, welfare, so these companies are exempted for adding the word limited or private limited. Now second thing, registered office clause. In the memorandum of association itself, every company has to mention the state in which its registered office is situated. A company must from the 15th day of its incorporation must have a registered office which is capable of receiving and acknowledging all communication, and notice may be addressed. All the correspondence and communications to the company must be addressed to its registered office. The territorial jurisdiction of the court is also determined from the address of the registered office of company. The members of company or other parties who want to examine the document personally or obtain additional information about the company may approach its registered office. So second important clause, that is registered office clause. In memorandum of association, every company has to mention that which is registered office situated. आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई भी आपने कंपनी स्टार्ट की, उसके 15 डे के अंदर आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट में है, वो आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, जैसे आपके घर का एड्रेस है तो उससे आपके रिलेटिव कोई लेटर्स आपको भेज सकते हैं, जो बैंक है वो पासबुक, चेकबुक भी आपको दे सकती है, आधार कार्ड आपके घर पे आ सकता है, कोई टेलीफोन बिल रेगुलर आपको मिल सकता है। तो आपका एड्रेस है इसीलिए आपको रेगुलर मिल रहा है ना। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, इनकम टैक्स ऑफिस है, बैंकर्स हैं, वो अगर कंपनी से कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं तो एवरी कंपनी मस्ट बी एड्रेस्ड, उसका एड्रेस होना चाहिए।
और जो भी आपकी रजिस्टर ऑफिस है वो डोमिसाइल होगा, वहां से मालूम पड़ेगी भी कंपनी की रजिस्टर ऑफिस कहाँ है। ऐसा नहीं है कि जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पर आपकी ऑफिस हो, अदर प्लेस पर हो सकता है। जैसे हिम्मतनगर के अंदर अंबुजा इंडस्ट्रीज है, तो प्रोडक्शन यूनिट हिम्मतनगर के अंदर है, लेकिन उसकी रजिस्टर ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है। एशियन टाइल्स का प्रोडक्शन यूनिट हिम्मतनगर में है और उसकी रजिस्टर ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है। रिलायंस है, उसकी रजिस्टर ऑफिस मुंबई के अंदर है। तो उससे उसका ज्यूरिडिकेशन वो भी फाइनल हो जाएगा। ज्यूरिडिकेशन ऑफ कोर्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर उस पर कोई क्लेम हुआ या उसने किसी पर क्लेम किया, तो उसका जो केस है वो मुंबई की कोर्ट में चलेगा, क्योंकि रजिस्टर ऑफिस उसकी मुंबई के अंदर है। अंबुजा है, उसका रजिस्टर ऑफिस अहमदाबाद के अंदर है, तो उस पर लिखा विद ज्यूरिडिकेशन एज पर अहमदाबाद। तो अगर उसका कोई केस है और उसने किसी पे केस किया है, तो उसकी जो कोर्ट है वो अहमदाबाद की रहेगी। उससे ये मालूम हो सकता है। एंड if any shareholder want to examine the documents or any bank want to examine the document of company, तो अगर आपकी रजिस्टर ऑफिस है तो वो शेयर होल्डर है या बैंक है या क्रेडिटर्स पर्सनली वहाँ पर आ सकता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो उसके लिए कंपनी की रजिस्टर ऑफिस का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। द थर्ड थिंग दैट इज ऑब्जेक्ट क्लोज। It is mandatory for every company to state in its memorandum of association the objective for which the company is proposed to be incorporated. Object clause carries the greatest importance in the entire memorandum of the company. The promoters of the company are at liberty to have choice of object of a company. However, the following are the restrictions upon the promoters to select the object of the company. First things, object must not be against any law or the provision of the Companies Act. Object of the company must not be against any public policy or the provision of the Constitution of India. The object should not be contrary to the provision of any general law. So object clause. So the most important clause of memorandum of association, that is object clause. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपनी का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये उसके अंदर डिसाइड किया है। कोई भी कंपनी ने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है वही काम उसको करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी का प्रमोटर्स है, दे हैव द लिबर्टी टू चूज देयर ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। वो फ्री है, लेकिन एक बार उसने डिसाइड कर दिया तो फिर उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट है वही करना पड़ेगा, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपने जब शेयर इश्यू किया तो मेमोरेंडम में आपने आपका ऑब्जेक्ट लिखा था, तो कंपलसरी आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। अगर उससे अगेंस्ट चले गए तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। कोई भी शेयर होल्डर आपके अगेंस्ट केस कर सकता है कि भाई कंपनी ने ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट काम किया है। सो ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट एनी लॉ ऑफ प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अगेंस्ट आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जो इंडिया के अंदर जो कंपनी का जो रूल्स है उसका जो लीगल लॉ है
वही आपको फॉलो करना है। उसके अगेंस्ट आप कोई भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। सेकंड थिंग ये है, कंपनी का कोई भी ऑब्जेक्ट जो पब्लिक पॉलिसी है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन पब्लिक को भी देखना पड़ता है। पब्लिक पॉलिसी से अगेंस्ट आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखा है उसके अगेंस्ट आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते और सेलिंग नहीं कर सकते, ये रूल्स हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सपोज गवर्नमेंट ने जैसे प्लास्टिक पर बैन कर दिया सपोज, तो फिर आप आपके मेमोरेंडम में ऐसा नहीं लिख सके हम प्लास्टिक का प्रोडक्शन करेंगे, आप ऐसा नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो डिसाइड किया है, जो चीज़ बैन हुई है इंडिया के अंदर वैलिड नहीं है, तो फिर आप उसका प्रोडक्शन और सेलिंग नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डिसाइड कर सकते जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो ऐसा आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। दूसरा चीज है कि द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ एनी जनरल लॉ। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंडिया के लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, जनरल लॉ जो बनाया है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लॉ डिसाइड किया है आप कि उसके अगेंस्ट जाएंगे तो गवर्नमेंट आपकी कंपनी पर बैन कर सकती है। जैसे राजस्थान के अंदर जो दारू मिल रहा है वहां पर गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, तो राजस्थान के अंदर जो लीकर है वाइन है उस पर कोई बैन नहीं है, तो वहां पर आप प्रोडक्शन यूनिट डाल सकते हो, बिकॉज लीकर वाइन इज a लीगल एक्टिविटीज इन राजस्थान, but same thing is a ban in Gujarat. So you cannot start a company in Gujarat to produce his wine or liquor. आप यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि ये अगेंस्ट लॉ है। राजस्थान में कर सकते हो क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट आपको परमिशन दे रही है, तो आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी द प्रोविजन ऑफ एनी जनरल लॉ। नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस, a company can pursue only those objects which and are clearly mentioned in its memorandum of association. A company possesses only those powers which are either explicitly or implicitly conformed upon its by virtue of its memorandum of association. Any activity in excess to what is stated in the object clause will be void, and the same will be declared ultra virus, means beyond powers. If the act is ultra virus, it does not create any legal relationship. Such an act is absolutely void. Even the whole body of shareholder ratify it and make it binding upon the company. Following are the consequence of ultra virus act. अगर कोई भी कंपनी है उसने जो ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती, वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज इट इज अगेंस्ट वर्च्यू ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड इट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायरस। तो अगर कंपनी अगेंस्ट गई है उसके ऑब्जेक्ट से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। कोई भी शेयर होल्डर कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकता है, कंपनी के अगेंस्ट कर सकता है।
और कंपनी को उसके लिए पेनल्टी हो सकती है, जो डायरेक्टर्स है उसको जेल या पेनल्टी भी हो सकती है। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर अल्ट्रा वायरस। अगर कंपनी के डायरेक्टर ने जानबूझकर अगेंस्ट कंपनी के अंदर गए हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो उन पर केस हो सकता है। कई कंपनी है, जैसे सत्यम कंपनी थी, उसका ऑनर था रामलिंगा राजू, उसने कंपनी के मेमोरेंडम अगेंस्ट काम किया तो वो जेल में है। सहारा कंपनी का ऑनर जो सुब्रतो रॉय है वो काफ़ी सारे सालों से जेल के अंदर है, तो उसके लिए आपको डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएगा। कोर्ट कैन बी प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। अगर कोर्ट को लग रहा है कि कोई भी कंपनी उसके मेमोरेंडम के अगेंस्ट है तो कोर्ट उसको प्रिवेंट कर सकती है, उसको स्टॉप भी करवा सकती है कि भाई दिस इज अगेंस्ट लॉ। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उसने कहीं पर भी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब उसकी लीगल एंटिटी नहीं होगी, वो लीगली नहीं रहेगा, क्योंकि वो अगेंस्ट कंपनीज मेमोरेंडम है, तो वो लीगली कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकता। फॉर एनी अल्ट्रा वायरस एक्ट बाय एन एम्प्लॉय एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल। अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय ने भी कोई अगेंस्ट कंपनी से काम किया है बिहाफ ऑफ कंपनी, जैसे अकाउंटेंट है, या उसने के कंपनी के ऑब्जेक्ट अगेंस्ट काम किया है, तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपनी ही रहेगी, क्योंकि वो कंपनी का एम्प्लॉय है। सो अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंपनी। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो कंपनी के जो डायरेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आप कंपनी पर केस करोगे, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। सो डायरेक्टर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। In order to avoid situation, generally company includes most area of function with the terms of any other objects in the object clause of its memorandum of association। तो सभी भी कंपनी को मालूम है कि वो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो वो लोग क्या करते हैं कि जब मेमोरेंडम रेडी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ फंक्शन जो है वो सभी उसके अंदर डाल देते हैं, तो जितने भी क्राइटेरिया है वो उसके अंदर आ जाए, ऐसा वो क्लोज डिसाइड कर लेते हैं। फोर्थ इज अ लाइबिलिटीज क्लोज। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ लाइबिलिटीज द कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड इन थ्री क्लासेस: अ कंपनी लिमिटेड बाय सेल्स, a company limited by guaranteeing, an unlimited liabilities company. The memorandum of a company limited by shares must state in its liability clause that the liabilities of its member is limited. In the company limited by shares members, the memorandum of a company limited by shares must state in its liabilities clause that the liability of its member is limited. In the companies limited by shares, members can be called on to pay more than the nominal value of their shares. If the liabilities of the member of a company is limited by guarantee, then their liability will be up to the extent
of the guarantee offered by them. In case of one person company, the name of the person who, in the event of death of the subscriber, shall be nominated the member of a company must be stated in the liabilities clause. So fourth is the liabilities clause. So in this clause, there are three classes of this clause: a company limited by shares, a company limited by guarantee, an unlimited company. So memorandum of association is decided whether shareholders liabilities is limited or unlimited. If any company issued a share in the market, so their shareholders limited is limited. अगर कोई भी कंपनी ने मार्केट के अंदर शेयर इश्यू किया है तो उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है। मतलब सपोज आपने टाटा कंपनी के अंदर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 का है तो आपकी लाइबिलिटीज भी 10,000 की हो गई। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, उसकी लाइबिलिटीज और बढ़ गई, तो वो लाइबिलिटीज पे करने के लिए किसी भी शेयर होल्डर की उसको पर्सनल एसेट है वो बेचने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट 10,000 का किया, सो योर लाइबिलिटीज मस्ट बी 10,000। सो हियर कंपनी कैन नॉट बी कॉल्ड पे मोर देन 10,000। आपको 10,000 से ज़्यादा पे नहीं करना है। अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय गारंटी जैसे इंडिया में के अंदर है बीसीसीआई, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, वो लिमिटेड बाय गारंटी है। उसके अंदर जो भी पर्सन ने कंपनी स्टार्ट की थी, तो उन्होंने जितनी गारंटी दी थी उतनी ही उनकी लाइबिलिटीज है। जैसे पर्सन ए ने 10 लाख की लाइबिलिटीज दी है कि भाई मेरे गारंटी 10 लाख की है, पर्सन बी ने 20 लाख की ली है, पर्सन सी ने 30 लाख की ली है, तो सिर्फ उनको उतना ही पे करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितनी गारंटी दी है। जो अनलिमिटेड कंपनी रहती है तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर परचेज किया है, उनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई एंड इफ देयर लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, सो शेयर होल्डर मस्ट सेल देयर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड मस्ट पे देयर ड्यूज। अगर अनलिमिटेड है तो अगर उसकी लाइबिलिटीज ज़्यादा हो गई तो जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। अगर वन पर्सन कंपनी है तो उसमें तो सभी लाइबिलिटीज उसकी ही रहेगी, उसको ही पे करना है क्योंकि वन पर्सन ही है। लेकिन उसको नॉमिनी डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद कंपनी है वो कौन चलाएगा, वो उसको कंपलसरी उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज लाइबिलिटीज क्लोज। सो कैपिटल क्लोज, the capital clause is compulsory only in the case of a limited company. The company limited by shares must state in its capital clause the amount of capital, the number of shares into which it is divided, and the amount of each share. In the case of a company limited by guarantee, the amount up to which each member undertakes to contribute at the time of winding up should be specified. If the company limited by guarantee also has a share capital, the capital clause of such company has two capital clauses, one relating to the guarantee, another relating
to share capital. In case of one person company, the name of the person who, in the event of death of the subscriber, shall become the member of company must be written. So capital close means how much capital company acquired during its life, because in individual firm or partnership firm all the capital brought by owner, but whenever you started a limited company, so limited company always issued a share to the public and invite to the public for purchasing their shares. So capital close is compulsory in the case of limited company, क्योंकि अगर आपकी जो लिमिटेड कंपनी है तो आपके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें कंपलसरी आपको कितनी कैपिटल है वो लिखना पड़ेगा. सो एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब उसने शेयर इश्यू किए हैं. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़. सो हाउ मच ऑथोराइज कैपिटल? सो कंपनी मस्ट बी मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. And after the amount of capital, how many shares issued in the market and what is the price of each share? Suppose any company having 100 crore capital and company issued a share at rupees 100. So 100 crore divided by 100. So you will get each share value. अगर कोई कंपनी है उसके पास 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए और एक शेयर की कीमत उसने 100 रुपीज डिसाइड की है, तो आपके पास 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो ईच शेयर की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि भाई कंपनी 10 लाख शेयर मार्केट के अंदर इश्यू करने वाली है, क्योंकि 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगी कि कंपनी को इतनी कैपिटल है, उसकी रिक्वायरमेंट है. एंड इफ एनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जैसे इंडिया में बीसीसीआई है, भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी. तो यहाँ पर लिमिटेड बाय गारंटी है मतलब उसमें जितने भी मेंबर्स है उसने गारंटी दी है कि भाई अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हुआ तो हम इतनी कैपिटल पे करने के लिए रेडी हैं. तो उसके अंदर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पास कितने शेयर हैं और एक शेयर की प्राइस क्या है, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो कोई भी अगर कंपनी है, अगर उसने शेयर इश्यू किया है तो उसकी एक शेयर की कीमत क्या है, हाउ मेनी शेयर इश्यूड इन द कंपनी, वो उसको मेंशन करना पड़ेगा. इफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऑल्सो हैज अ शेयर कैपिटल, सो द कैपिटल क्लोज ऑफ सच कंपनी हैज टू कैपिटल क्लोजेस, वन रिलेटिंग टू द गारंटी कि भाई ईच मेंबर ने कितनी गारंटी दी है, और दूसरा कि उसने शेयर इश्यू किए तो पब्लिक के अंदर कितने शेयर इश्यू किए हैं, एक शेयर की प्राइस क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, वो भी मेंशन करना पड़ेगा. अगर 1% कंपनी है, 1% कंपनी का मतलब कि एक ही आदमी ने वो कंपनी स्टार्ट की है, वन मेंबर. 1956 में जो कंपनीज एक्ट था उसमें वन कंपनी का कोई क्लोज नहीं था, बट इन 2013 गवर्नमेंट अलाउड टू स्टार्ट अ 1% कंपनी. तो आप 1% की कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो. अगर आपने 1% की कंपनी स्टार्ट की तो उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो 1% जिसने कंपनी स्टार्ट की अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद नॉमिनी कौन रहेगा, उसके बाद मेंबर ऑफ कंपनी कौन रहेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा. कि जैसे एक एक्स है, उसने 1% की कंपनी स्टार्ट की तो उसको
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखना पड़ेगा कि भाई अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका सन है वो कंपनी का मेंबर हो जाएगा. इट मस्ट बी रिटन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नाउ सब्सक्रिप्शन क्लोज. This clause can be termed as an incorporation clause, association clause, or signature clause. A company may be formed for any lawful purpose by signature of minimum 7 or more person, where the company to be formed is a public company. Signature of minimum 2 or more persons are required where the company to be formed as a private company. In case the company is to be formed by one person only, it is termed as a one person company. The members of the company put their signature and give an undertaking to the effect that they are interested in promoting the incorporation of company and are willing to purchase the shares mentioned against their names. The name, address, and details about their work has to be provided and attested by a witness. Such members are also called signatories. So subscription clause. So this clause is very important, and this clause is also known as an incorporation clause, association clause or signature clause. तो जिन लोगों ने कंपनी स्टार्ट की है, जो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जो ऑनर्स हैं, जिसके माइंड के अंदर कंपनी स्टार्ट करने के सोचा था कि भाई मेरे को कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है. क्योंकि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 पर्सन को रजिस्ट्रार के सामने जाकर सिग्नेचर करनी पड़ेगी कि हमने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं सब इंफॉर्मेशन सही है. एंड इफ योर कंपनी इज पब्लिक लिमिटेड, सो मिनिमम 7 पर्सन्स सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड. तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो 7% का सिग्नेचर चाहिए, और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2% की सिग्नेचर चाहिए. वहां पर आपको एश्योरेंस गारंटी देनी पड़ेगी कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, कुछ भी हमने गलत नहीं किया है, वो आपको गारंटी देनी पड़ेगी. एंड इफ एनी कंपनी इज फॉर्म्ड बाय ओनली वन पर्सन, सो दैट इज कॉल्ड ओपीसी, वन पर्सन कंपनी. उसको रजिस्ट्रार के समक्ष सिग्नेचर करना पड़ेगा. एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम 2 members, in public minimum 4 members put their signature and giving an assurance that all the documents are complete, correct, and there is a no error in any document ऐसा गारंट देना पड़ेगा. एंड उनको एक एश्योरेंस, एक गारंटी भी देनी पड़ेगी कि कंपनी के अगर शेयर इश्यू किए तो वो लोग भी खुद परचेस करेंगे, क्योंकि उनको भी परचेस करना चाहिए. अगर आपकी कंपनी है और अगर आप ही उसके शेयर परचेस नहीं करोगे तो पब्लिक कैसे आप पे ट्रस्ट रखेगी. तो आपको एक ऐसी भी गारंटी देनी पड़ेगी, ऑल द प्रमोटर्स विलिंग टू परचेस द शेयर मेंशन अगेंस्ट देयर नेम्स. उनको लिखना पड़ेगा हम इतने शेयर परचेस करने वाले हैं. ऑल द मेंबर्स जिसने सिग्नेचर की है उसके नेम्स, एड्रेसेस एंड डिटेल्स ऑफ देयर वर्क भी वहाँ पर देना पड़ेगा. और कई बार जो रजिस्ट्रार है जब सिग्नेचर का टाइम आएगा तो विटनेस भी, क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर की, उसका विटनेस भी चाहिए. तो उसके पास विटनेस होना चाहिए, हाँ मैं था और मेरे सामने इन लोगों ने सिग्नेचर की है. सो विटनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं
जो रजिस्ट्रार के सामने जाएंगे, जिनको कंपनी स्टार्ट करनी है, उनको कंपलसरी सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में करना पड़ेगा। गारंटी देनी पड़ेगी कि उनके डॉक्यूमेंट सभी सही है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, और गारंटी देनी पड़ेगी। और विटनेस है, उसकी भी सिग्नेचर चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, एंड पब्लिक है तो मिनिमम 7 पर्सन सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। So students, this question very much important. Clauses of the memorandum of association, I will repeat. First, name clause. Second, register office clause, object clause, liability clause, capital clause, and subscription clause. Thank you very much.